हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10 आईसीएसई। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है सर्कल्स। ऑलरेडी आपने सर्कल्स का टॉपिक 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया था, राइट? तो उसी का ये आप नेक्स्ट सेक्शन है, ये समझ लीजिए। कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स है जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, और पिछले साल के भी जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं circles का। First of all, what is meant by circles, right? So circles is obtained, or it is a closed curve. Okay, how are we going to obtain this? By joining all these points. Okay, so we are joining all these points which are at fixed distance. See, which are at fixed distance, and from this center, which is the fixed point. So circles is a curve, a closed curve. By joining, how we are getting it? By joining all the points or locus of points, okay, which are at fixed distance from the center, which is the fixed point. Okay, so this is how we are getting our circles. तो इसमें जो जरूरी चीज है वो क्या क्या है? रेडियस. रेडियस is what? Fixed distance from the center. Fixed distance from the center. From the center. Okay, center is nothing but the fixed point, right? Center, what is meant by center? See, this O is the center. This is the center of the circle. So center is that fixed point. See, and around it, see, around it, like from this fixed point, whatever these points are there, it is making a closed curve, correct? This closed figure or closed curve we are getting, right? So this boundary, whatever we have, that is what we call it as circumference. So circumference is nothing but a perimeter. You can call it as perimeter, you can call it as boundary. It's all one and the same, right? Then there is also something called as a diameter. So what is meant by diameter? Diameter is the longest curve which passes from the fixed point, which is center, right? So it is the longest curve. Diameter is longest chord which passes through the center, Okay, this was all about the circles. Okay, so how we are getting a closed curve? We are getting a closed curve. Okay, and this is at the fixed distance which we call it as radius from anywhere, right? You in this one circle, एक ही सर्कल में जो रेडियस होगा वो सेम होगा. अगर ये मैंने ड्रॉ किया है 5 सेंटीमीटर का सर्कल, तो हर जगह पे वो 5 सेंटीमीटर ही होगा. इसे कहेंगे circumference. This is what we call it as circumference of the circle, right? We have learned this in 9th standard, 8th standard. These concepts are already been given to us. ठीक है, मैं तो बस आपको रिवाइज करा रही हूँ ये. ओके, आई होप सो आपको सारे पार्ट्स जो सर्कल के हैं वो समझ में आ गए. और भी पढ़ने वाले, ये बेसिक है, राइट? नाउ लेट अस नाउ सी different types of circles. What is meant by concentric circles? This all points are very important. Okay, so concentric circle, ये concentric circle क्या होता है? So when I talk about a concentric circle, I am first drawing a center, a fixed point. उसके अराउंड मैंने सर्कल निकाला. This radius is of 2 centimeter. Okay, again my fixed point is same. I'm not changing my fixed point. I'm drawing another circle. Okay, which is the radius has now got changed to 5 centimeter. Okay, again I am drawing a bigger circle. Now this is of 7 centimeter. So what you are able to see, I'm not changing the fixed point. Center जो है वो same ही रखा है ना, only the radius is getting changed. You call it as concentric circle. Circle का जो center था वो same है ना, बस उसका जो circumference या फिर जो radius है, that I'm changing and I'm getting my concentric circle. Okay, I hope so now this is fine with you. Now there are concepts which are called as incircle and circumscribed circle. So we'll see what is meant by circumscribed circle. Circumscribed circle. Okay, so what I'll have to do is I'll have to draw a circle, and inside that a polygon is there. Polygon can be 4-sided figure, 5-sided figure, 3-sided figure, है ना. तो circumscribed circle में क्या हो रहा है? Circle outside में है and you have a polygon inside, so you call it as circumscribed circle.
It can be triangle inside. Okay, I'm drawing a circle, उसके अंदर triangle दिखाया, तो ये भी हो गया circumscribed circle. Okay, look at this. So all these examples are of circumscribed circle. Okay, so all these examples are of circumscribed circle. So what are you able to understand from circumscribed circle? As in the circle is outside and inside there is a polygon, and all the vertices are lying on the circumference of the circle. Look at this, all the vertices are lying on the circumference. Okay, so that is why you call it as circumscribed circle. You call it as what? Circumscribed circle. Look at this. The vertices of this polygon are lying on the circumference of the circle. Okay, so this point also you have to remember. Okay, I hope so now you are able to understand what is meant by circumscribed circle. Next point is inscribed circle. So what is meant by inscribed circle? So name itself tells you in circle. So circle is inside the polygon. Okay, so if I'm drawing this polygon, which is a four-sided figure, inside that has to be a circle. Okay, exactly inside it has to be a circle. See, all sides of that polygon are touching the circle. Okay, you should remember it in that way. So whenever you are drawing, you'll have to take care of that. Okay, so this is a triangle, and in that you are drawing a circle. Okay, so this is what we call it as inscribed circle. So all these points also you'll have to remember. Then there is something which is called as chord of circle. So जब भी मैं chord बोल रही हूँ, diameter को मैंने बोला था longest chord है ना? So what is meant by chord? So chord is a line, a straight line, which is joining two points on the circumference of the circle. So this is called as chord. So AB is the chord. Okay, AB is the chord, or CD is the chord. Okay, so what is chord of the circle? That is a straight line which are joined by two points. Joined by 2 points on circumference of the circle. On circumference of the circle. You call it as chord of the circle. ठीक है? Diameter is the longest chord of the circle which passes through the center of the circle. Fine. This is chord. Okay. So now theorem. We'll consider theorem which you have learned already in 9th standard. Okay. Theorem on chord. So what is that theorem? ये आपका सर्कल है with center O and AB is the chord. So when you are drawing perpendicular from the center of the circle to the chord, okay, so what? Drawing perpendicular from center O to chord AB. अगर आपने एक perpendicular draw किया from the center to the chord AB, then M becomes midpoint. ये आपने पढ़ा था 9th standard में. M becomes midpoint of AB chord, है ना? तो ये two equal parts हो जाएंगे. तो AM will become MB. AM will be equal to MB. ये आपने पढ़ा है 9th standard में. So this theorem which is based on chord, might be it will be useful for you. It is just a revision. ये 9th standard का revision में आएगा ये topic. ठीक है? And इसी के opposite में क्या था? Converse जो था. At that time converse also was given. Converse they were saying that if the chord of the circle and AB, O is the center and M is midpoint. So here what is given? They had given that M is midpoint. M is midpoint of AB. So you join midpoint and the center of the circle. You join this. Okay, you are just joining. Join what? Join O and M. Then what will happen? Then OM will become perpendicular to AB.
This is what you have learned for chords. These concepts are also like very important from a point of view of 9th standard revision. तो ये आपको थोड़े concepts है याद रखने हैं, ठीक है? चलिए next concept पढ़ लेते हैं. Okay, now we'll start with the next concept, which is arc and segment. Okay, arc and segment. So if this is a circle, इस सर्कल में मैंने अगर ये कॉर्ड ए बी दिखा दिया, ठीक है, तो मुझे ये जो पार्ट मिल रहा है, so which is bounded by over here, this part which I'm getting due to this chord, so this part is nothing but a minor arc. This is called as minor arc. So a part of the circumference of the circle, only boundary, okay, that is what you call it as arc. And now the bigger one, see, this is called as minor arc. The left out portion, will show it with different color. Okay, if I'm showing with blue color, so this portion, see, look at this. Okay, so this portion is what we call it as major arc. This is called as major arc. Okay, I hope now you have got to understand what is meant by arc. Only the arc is what? Only the part of the circumference of the circle. Arc is nothing but only the part of circumference. Arc is part of circumference. Okay, so it's a curve. Basically, it's a curve. And when I talk about the segment, what is meant by segment then? So segment. So when we are considering a segment, I'll have to also consider the chord. जब भी मैं segment के बारे में बात करूंगी, the portion of the circle which is bounded by the chord means what? The portion, this portion. So basically this portion if I talk about, तो ये हो गया segment. This portion is called as segment. So portion of circle bounded by arc and chord. Okay, so portion of circle bounded by arc and chord, you call it as segment. So the way I have shown you, this is what? The minor segment. You will call it as minor segment. Okay, and ऊपर वाला जो है, if I talk about the ऊपर वाला part, so if I am considering this portion and along with that this portion, this is what? The major segment. This will become the major segment. Okay, so segment means what? That is the portion of the circle bounded by the arc and chord, you call it as segment. Okay, so guys, let's move to very important topic, which is the theorems. Okay, and this theorems you are going to learn it for the first time. तो ये 10th standard में बहुत ज़्यादा important circle के theorems है जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, and definitely questions जो आते हैं, sums जो पूछे जाते हैं, वो इन्हीं theorems के ऊपर रहते हैं. तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक बार समझ में आ गए तो आप कोई भी टाइप के क्वेश्चंस है आराम से सॉल्व कर सकते हैं. So here 4 theorems are there. We'll see one by one. What is that first theorem says? Now let's see. The angle which an arc of a circle, see, arc of a circle subtends at the center. Okay, see now, arc of a circle, this is the arc of a circle. Okay, I'm considering arc of the circle, arc APB. Okay, I'm considering this arc of a circle. What has been said? The angle which an arc of a circle subtends at the center. So because of this arc of the circle, we are getting one angle at the center. See, we are getting one angle at the center. Which is that angle? Which is that angle? AOB. So due to arc APB, we get angle AOB at center. ठीक है? So due to this arc APB, we get an angle AOB at center. ठीक है? You have got to understand this. So first line, what has been given? The angle which an arc of a circle subtends at the center is double that which it subtends at any point on the remaining part of the circumference. Is double. Double किसके है? Double at an angle any point on the circumference. So वो double किसका होगा?
ये जो सरकमफरेंस के ऊपर जो आर्क के वजह से एंगल बन रहा है, तो कौन सा बन रहा है एंगल? ये वाला बन रहा है एंगल, कौन सा? ACB। ये कहां पे है? एंगल ACB इज एंगल ड्यू टू आर्क APB एट सरकमफरेंस। कहां पे बन रहा है ये? सरकमफरेंस। सो आर्क APB के वजह से दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल सेंटर पे जो है AOB और एंगल ACB सरकमफरेंस पे, एंगल ACB सरकमफरेंस पे। तो ये दो एंगल्स जो बन रहे हैं उनके बीच एक रिलेशनशिप है। So what is that relationship? They say that the angle which is at the center is 2 times the angle at the circumference. तो अगर AOB 2x है तो circumference का एंगल ACB जो है वो x है। It is as simple as that. I hope I am very much clear with this part. जो सेंटर पे बनेगा वो बड़ा एंगल होने वाला है, वो बहुत बड़ा एंगल होगा, और जो सरकमफरेंस पे बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है कहीं पे भी, सरकमफरेंस पे कहीं पे भी बनेगा सेम आर्क के वजह से, सेम आर्क के वजह से, तो वो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्क APB है, तो ये आर्क के वजह से कहीं पे भी, तो मैं ऐसे भी अगर दिखा रही हूं, ये आर्क के वजह से यहाँ पे एंगल बन रहा है, इसको हम लोग नाम दे देंगे AXB। सो एंगल AXB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB। ये बोला गया है, ये बोला गया है। तो कहीं पे भी अगर इस आर्क के वजह से जो एंगल सरकमफरेंस पे बनेगा वो हाफ हो जाएगा उस आर्क के वजह से जो एंगल सेंटर पे बन रहा है उसका। ठीक है, इतना ही बोला गया है। और इसको समझते हैं, इस वाले पार्ट को और ज्यादा गहराई में समझेंगे। चलिए मैं एक सर्कल निकाल लेती हूं। यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया है और मैं यहाँ पे एक आर्क बना लेती हूं APB एंड ये O है। तो अगर AOB मेरा 60 डिग्री होगा, ठीक है, AOB अगर मेरा 60 डिग्री है, तो यहां पे मैंने AYB अगर लिखा तो ये कितना बन जाएगा? एंगल AYB इज हाफ ऑफ एंगल AOB। तो AYB सरकमफरेंस पे है, सो AYB इज हाफ ऑफ AOB कितना है? यहाँ पे 60 है, तो 2 1 जा 2 30 जा, तो कितना बन जाएगा? एंगल AYB कितना बन जाएगा? 30 डिग्री बन जाएगा। ये इतना सिंपल है, आपको समझा ये? इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं ब्लू पेन से दिखाती हूँ। ये वहां पे शिफ्ट कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। ओके, सो ड्यू टू दिस आर्क here PQY, this arc, PQR, we'll write down this PQR is the arc, this portion। हाँ, मैंने जहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, ये आपका आर्क है इसके वजह से, और ये एक एंगल बना रहा है सरकमफरेंस पे। इट इज मेकिंग एन एंगल एट द सरकमफरेंस। ओके, इफ दिस मेक्स एंगल 35 डिग्री एट द सरकमफरेंस, okay, if this makes angle 35 degree at the circumference, so what will be the angle at the center? What will be the angle at the center? See, PQR is an arc। ठीक है, पहले तो समझना है कौन सा आर्क लिया मैंने। यहाँ पे PQR ले लिया, हाँ माइनर वाला आर्क लिया। ये कौन सा? माइनर आर्क ले लिया मैंने, ये माइनर आर्क लिया है। तो PQR ये अगर मैंने आर्क ले लिया है, तो इसके वजह से, इस आर्क के वजह से मुझे, मैंने यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ, ए दे देती हूँ। ओके, सो फ्रॉम दिस आई एम गेटिंग टू एंगल्स। एक एंगल कौन सा है? ऑन द सरकमफरेंस। ऑन सरकमफरेंस कौन सा एंगल होगा? ऑन सरकमफरेंस कौन सा बन रहा है एंगल? एंगल PAR। कौन सा बनेगा?
PAR, नाम क्या लिखेंगे? PAR, ठीक है। और दूसरा सेंटर पे बन रहा है, दूसरा कहां पे बन रहा है? ऑन सेंटर। क्या नाम होगा उसका? सेंटर पे जो बन रहा है वो POR। क्या एंगल बन रहा है? POR, ठीक है। तो इस आर्क के वजह से, PQ आर्क के वजह से दो एंगल बन रहे हैं, एक सरकमफरेंस पे बन रहा है और दूसरा सेंटर पे बन रहा है। तो इनमें रिलेशनशिप क्या होगा? बोला जाता है जो सेंटर पे होता है वो डबल हो जाता है। तो क्या है रिलेशनशिप? व्हाट डज दिस गिव्स अस? ये रिलेशनशिप क्या दे रहा है हमें? आई एम इरेजिंग दिस। तो फ्रेश में अगर हम लोग ने देखा तो ये रिलेशनशिप क्या देगा मुझे? ये देगा कि एंगल POR इज 2 टाइम्स, ये जो होता है ये 2 टाइम्स होगा, सेंटर पे होगा वो 2 टाइम्स एंगल, कहां पे? सरकमफरेंस पे जो होगा वो। सो एंगल PAR, so 2 times of angle 35 degree, so it's going to become 70 degree। यही स्टेटमेंट बोला गया है। आई होप नाउ आपको समझ में आ गया है। देखिए क्या बोला गया है, एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो इस आर्क के वजह से, हाँ, सबटेंड्स एट द सेंटर, तो सेंटर कहां पे है? O पे है। इस आर्क के वजह से सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? वो डबल होगा। किससे डबल होगा? विच इट सबटेंड्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट, तो कहीं पे भी, यहां पे बन सकता है या यहां पे बन सकता है, सरकमफरेंस पे वो बनना चाहिए। वो कहां पे बनना चाहिए? तो एक सरकमफरेंस पे, उस आर्क का ही सरकमफरेंस पे बनना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स द ओनली पॉइंट। ओके, कहीं पे भी सरकमफरेंस पे अगर उसका हम लोग ने ये चेक किया रिलेशनशिप, वो क्या हो जाएगा? सेंटर पे जो एंगल होगा वो डबल हो जाएगा। आर्क सेम होना चाहिए, आर्क क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। सो एंगल ड्यू टू आर्क एट सेंटर is double of angle due to same arc at circumference। यही एक सिंपल सा रिलेशनशिप, यही एक सिंपल सा रिलेशनशिप हमें दिया है, ठीक है, कि जो एंगल सेंटर पे होता है वो डबल होता है। किससे? वो सेम आर्क के वजह से जो सरकमफरेंस पे बना जा रहा है, उस एंगल का रिलेशनशिप हमें दिया है। वो सेंटर पे होगा वो डबल हो जाएगा जो सरकमफरेंस पे होगा उससे, ठीक है। यही है, बस इतना ही दिया गया है, यही आपका पॉइंट है, यही एक पॉइंट है, ठीक है। चलिए, ये थ्योरम भी समझ में आ गया आपको। आगे का थ्योरम पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी थ्योरम है, ठीक है। क्या लिखा है? देखिए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सो सेम सेगमेंट, इट कैन बी सेम सेगमेंट, इट कैन बी कॉल्ड एज सेम आर्क। तो ये जो देते हैं ना, ये स्टेटमेंट है, ये आपको ना गिव रीजन, मतलब व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग एट दैट टाइम आपको रीजनिंग लिखना होता है, तो रीजन लिखने समय पे आपको ये स्टेटमेंट्स देने हैं, आई अग्री। बट व्हेनेवर दे से सेगमेंट, नो, सो सेगमेंट बोल सकते हैं या आर्क बोल सकते हैं या कॉर्ड्स भी बोलेंगे तो भी चलेगा, कॉर्ड्स, ठीक है। इनमें से कुछ भी रहेगा ना तो भी ये वैलिड होने वाला है, ठीक है, ये स्टेटमेंट वैलिड ही होने वाला है। अभी देखिए क्या लिखा है, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो सेगमेंट कौन सा हो गया? APB, ये वाला, ठीक है। ये आर्क भी बोल दीजिए, या इसके वजह से AB कॉर्ड के वजह से जो बन रहा है वो, तो सेगमेंट बोल दिया। तो ये जो सेगमेंट है या आर्क है, उसके वजह से सरकमफरेंस पे कोई भी दो एंगल बन रहे हैं। तो जैसे अभी ये देखिए, इस ब्लू वाले आर्क के वजह से या ब्लू वाले सेगमेंट के वजह से दो एंगल सरकमफरेंस पे कौन से बन रहे हैं? ACB एंड ADB, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। आर्क कौन सा है? आर्क APB है। इनके वजह से सरकमफरेंस पे दो एंगल बन रहे हैं, तो ऑन सरकमफरेंस टू एंगल्स आर फॉर्म्ड। कौन से है वो दो एंगल्स? ये देखिए अभी, ACB एंड ADB, कौन से है? ACB एंड ADB, तो वो दो एंगल्स जो बन रहे हैं वो क्या है?
आर इक्वल। तो मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, बस इतना ही बोला गया है। ठीक है, तो ये सेगमेंट के लिए बोलोगे या आर्क के लिए बोलोगे या कॉर्ड के लिए बोलने वाले हो तुम लोग, तो इट इज गोइंग टू बी सेम। ओके, you can call it as for the same segment, for same arc, for same chord, it will be same. So they are saying कि जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे सरकमफरेंस पे कहीं पे भी, तो सर इस वाले आर्क के वजह से या इस वाले सेगमेंट के वजह से अगर मैंने ऐसे भी बता दिया यहाँ पे और मैंने इसका नाम कुछ अलग दे दिया, मैंने इसका नाम एफ ले लिया, तो हम लोग बोलेंगे कि ए एफ बी, इवन एंगल ए एफ बी भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री ही होने वाला है। ये भी कितना बन जाएगा, 30 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, क्योंकि आर्क सेम है या सेगमेंट सेम है, ठीक है, या कॉर्ड सेम है। तो यही एक थ्योरम है कि जहाँ पे ये एसोसिएट करेंगे हम लोग यहाँ से, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखिए उसका जो सेंटर होगा वो सेम होगा, तो आप इस आर्क से अगर यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहे हो एक एंगल आपको निकालना है यहाँ पे, हाँ ये इसका नाम दे देंगे बी, तो ये पी बी आर वो भी कितना हो जाएगा, 35 डिग्री ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उनके सेंटर का जो एंगल होगा वो सेम है, दोनों के सेंटर का जो एंगल है वो सेम है ना। तो ये इससे एसोसिएट करेंगे, पहले वाले का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से एसोसिएट करके दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आया, दूसरा वाला थ्योरम आ गया। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, बार बार यूज होगा इसका। Okay, so now let's talk about next theorem, which is the angle in semicircle is a right angle. So this is really very simple. They are trying to say that कि कोई भी semicircle है, semicircle मतलब obviously ये क्या होगा, ये डायमीटर होगा, ये वाला जो है वो डायमीटर होने वाला है, डायमीटर होने वाला है। ठीक है, तो डायमीटर के अंदर जो भी एंगल बनेगा, डायमीटर के अंदर जो भी एंगल बनेगा ऐसे, वो 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो कहीं पे भी सेमी सर्कल जब है और आप एंगल बना रहे हो, तो डायमीटर पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देख रहे हो तो ये देखिए, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो आपको ये नोटिस करना है कि डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर मतलब ही कहा गया वो सेमी सर्कल होगा। ठीक है, तो डायमीटर के वजह से, क्योंकि डायमीटर भी क्या होता है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो, है ना। और आपको वो पता है डायमीटर का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये अगर 180 है तो उसका आधा, ये अगर 180 है, ये देखिए ये 180 है, तो उसका आधा कितना होगा, 90 होगा ना। इस वाले आर्क के बारे में अगर मैं बात करूं तो, है ना, तो ये कितना बन जाएगा, ये उसका आधा बन जाएगा, 180 डिवाइड बाई 2 मतलब वो 90 बन जाएगा। इसलिए एंगल ए सी बी जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो डायमीटर के वजह से सरकमफरेंस पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सो द एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, आगे देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल और साइक्लिक प्रॉपर्टी। पहली बात तो समझना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है क्या, लिखा क्या है, व्हेन क्वाड्रिलैटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, तो मतलब क्वाड्रिलैटरल कहाँ पे है, सर्कल के अंदर है, और उसके जो सारे पॉइंट्स है, वर्टेक्स है, वो सरकमफरेंस पे है ना। तो सारे पॉइंट, सारे जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब कॉर्नर्स जो है, तो वो कहाँ पे है, वो सरकमफरेंस पे है। ठीक है, when the quadrilateral inscribed in a circle, that is vertices of quadrilateral lie on circumference of the circle, so such quadrilateral is called as cyclic quadrilateral। तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल को कहा जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। मैं एक आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल दिखाया और मैंने ऐसे दिखा दिया, तो आप इसे कहोगे क्या, ये साइक्लिक है, क्योंकि ये सारे कॉर्नर्स जो है वो सरकमफरेंस पे लाई नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, दिस इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, इसे नहीं कहेंगे ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल नहीं है। ठीक है, ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, क्यों, क्योंकि इसके सारे जो कॉर्नर्स है, वर्टेक्स जो है, ये सारे कॉर्नर्स जो है वो सरकमफरेंस के ऊपर है, इसीलिए आप कहोगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या कहोगे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए।
साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, देखिए साइक्लिक प्रॉपर्टी, द अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, अपोजिट एंगल्स, अभी अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों अपोजिट एंगल्स है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या, इन दोनों का एडिशन 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, एंगल ए प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर मैं बोलूंगी यहाँ पे ये 70 है, तो ये कितना होगा, 110 होने वाला है। इसका यही सिंपल सा मतलब है। जो अपोजिट एंगल्स है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के, सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, मैं ये बार बार बोल रही हूँ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, क्यों, क्योंकि इसके सारे वर्टेक्स जो है, कॉर्नर्स जो है, वो सर्कमफरेंस के ऊपर आ रहे हैं, इसीलिए आप इसे कहोगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के जो अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट मतलब आमने सामने वाले जो एंगल्स है, तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब उनका एडिशन 180 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है ये, ठीक है। जैसे अभी मैं और एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको, तो आपको और आइडिया आ जाएगा। ठीक है, ये पी क्यू आर एस, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूं ये 55 डिग्री है, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, एंगल पी प्लस एंगल आर विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गया, ये क्यों है, साइक्लिक प्रॉपर्टी की वजह से है, या साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, APQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर एंगल P एंड एंगल R आर 180 डिग्री। तो ये एंगल R कितना हो जाएगा, एंगल P दिया है 55 है, तो एंगल R क्या बन जाएगा, 180 माइनस 55। तो एंगल R 180 माइनस 55 कितना आ जाएगा, 125 डिग्री, लिखना मत भूलिए। ठीक है, मिल गया आपको एंगल R, तो ये कितना बन गया, 125 डिग्री बन गया, हो गया आंसर। समझ में आ गया, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो अपोजिट एंगल्स रहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के, वो हो जाएंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है, और एक थियरम है, देखिए ये लास्ट वाला थियरम है अभी इस वाली टॉपिक में। तो ये थियरम क्या बोल रहा है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। देखिए एक्सटीरियर एंगल, अभी एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, क्या लिखेंगे, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ABCD है, ये जो एंगल है, एंगल CBE या EBC, ये क्या है, इस एक्सटीरियर एंगल, क्या है ये, एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो वो बोल रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट कौन है, इस, ये देखिए इसके साइड में ये है, इसके सामने ये है, तो इंटीरियर अपोजिट ये आ गया। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, कौन कौन इक्वल है, एंगल EBC इज इक्वल टू एंगल ADC, ADC, ये प्रॉपर्टी बोल रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए इसको समझना भी आसान है, अगर मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पे कि ये 150 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, ABE तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये 30 हो गया। अगर ये 30 है, तो साइक्लिक प्रॉपर्टी लिखेंगे ये दोनों के लिए, CBA एंड CDA साइक्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएंगे, दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, तो 180 होता है, तो 180 माइनस 30 कीजिए, 150, देखिए ये दोनों 150 निकला। तो इसी को कहा गया है एक्सटीरियर प्रॉपर्टी थ्योरम, जहां पे साइक्लिक प्रॉपर्टी का यूज किया है उन्होंने, और बोला गया है कि जो ये इंटीरियर एंगल है और साइक्लिक प्रॉपर्टी का जो अपोजिट एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, वो दोनों इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो टोटल यहाँ पे हम लोग ने 4 थ्योरम्स पढ़े थे, जो इस साल उन्होंने फ्रेशली हम लोग को दिए हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बहुत जरूरी है। अभी देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चेक करेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट्स कितने समझ में आ गए हैं, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट्स उतने ही बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस। तो देखिए क्या क्या दिया है इस वाली फिगर में, इन गिवन फिगर एंगल BAD इज 65 डिग्री, ABD 70 डिग्री एंड BDC इज 45 डिग्री। तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन में आपको
गिवन फिगर है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको आंसर ढूंढने हैं और जो आपने प्रॉपर्टीज थ्योरम्स जो सब पढ़े हैं उसका यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या क्या दिया है। बी ए डी ये 65 डिग्री है और ए बी डी ये 70 डिग्री है। ठीक है, सो वन ट्रायंगल वी आर एबल टू सी। मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ वो ट्रायंगल, देखिए आप। ठीक है, ए बी डी ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें 65 भी है और 70 भी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए डी बी मिल जाएगा। ठीक है, सो आंसर इन ट्रायंगल ए बी डी या ए डी बी गिवन क्या है, बी ए डी एंड ए बी डी। बी ए डी एंड ए बी डी ये दोनों गिवन है, तो ये एंगल मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए ये एंगल निकाल लेते हैं, कितना आएगा। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, दैट इज बी ए डी एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो एंगल्स जो है वो गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखिए जो एंगल्स गिवन है वो 65 डिग्री, 70 डिग्री एंड एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, यू टेक इट ऑन द अदर साइड, इट विल बिकम व्हाट, सब्ट्रैक्शन। 65 डिग्री एंड 70 डिग्री का सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपको ये कितना होगा, 65 एंड 65 130 मतलब 135, 180 माइनस 135 कितना होता है 45 डिग्री। तो एंगल ए डी बी मिल गया 45 डिग्री, आपको ये एंगल मिल गया 45 डिग्री। पूछा क्या गया है, ए सी इज अ डायमीटर, तो अगर आपको ए सी डायमीटर चाहिए, हाँ ए सी कहाँ पे है, ए सी ये है, ये वाला ए सी डायमीटर चाहिए आपको, तो इसके वजह से ए सी के वजह से कौन सा एंगल बन रहा है, ए डी सी एंगल बन रहा है। हाँ वो बन रहा है 90 है, देखिए तो क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। कितना आ रहा है, 45 प्लस 45 आ रहा है, कितना आ गया 90 डिग्री आ गया एंगल ए डी सी। अगर ए डी सी 90 डिग्री है, ए डी सी 90 डिग्री है तो ए सी क्या बन जाएगा, सो ए सी देयरफॉर ए सी इज डायमीटर। और रीजन क्या लिखेंगे, दैट इज एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये आपने रीजन लिख दिया। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। और ACB चाहिए था आपको, क्या पूछा गया है, ACB, ACB पूछा गया है, मतलब ये एंगल पूछा गया है ACB। अभी आप देखिए ACB का ये जो सेगमेंट है या ये आर्क देखिए आप, ये वाला आर्क देखिए, तो ये आर्क के वजह से आपको दो एंगल मिल रहे हैं, ACB एंड ADB, ये दो आर्क मिल रहे हैं, ये आर्क और ये आर्क मिल रहा है ना, ये एंगल, दोनों एंगल्स। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज AB इज सेम सेगमेंट, therefore angle ACB is equal to angle, this ACB is equal to angle ADB। और ADB आपने ऑलरेडी निकाला है यहाँ पे 45 डिग्री, तो ACB भी मिल गया आपको, है ना। और इसका रीजन लिखा है AB is the same segment, so angles in same segment are equal। लिख लीजिए angles in same segment are equal। तो आपको डायग्राम से ही आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। PYQ ही है ये, मैं जितने भी सॉल्व कर रही हूँ तो वो सारे PYQs ही सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, ये आप
प्लीज सॉल्व कीजिए। आपको आइडिया आना चाहिए कि आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हमें टैकल कैसे करना है उस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन गिवन फिगर DBC is 58 degree. Okay, so okay, DBC is 58 they have given. DBC. Okay, so ये DBC मैं यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट करके दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये DBC ये 58 है, ये एंगल जो है वो 58 है, ठीक है। और पूछा क्या गया है, BD इज द डायमीटर। ये BD है जो डायमीटर है, जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बहुत डार्क हाईलाइट किया है ना। तो पूछा क्या गया है आपको, BDC ये पूछा गया, ये वाला एंगल BDC, ये एंगल पूछा गया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड दिया है उन्होंने, ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं। तो गिवन एंगल DBC इज इक्वल टू 58 डिग्री, ठीक है, एंड BD इज अ डायमीटर। So because of this I can have that BCD. So angle BCD is equal to 90 डिग्री। ये देखिए, ये डायमीटर के वजह से मेरा ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये डायमीटर है तो इसके वजह से ये एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये लिख लिया आपने, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। ये एंगल मिल गया आपको। अभी आप ट्रायंगल देखिए BDC, इन ट्रायंगल BDC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, ये DBC जो गिवन है प्लस अभी जो निकाला वो BCD प्लस ये जो पूछा गया है BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। जो वैल्यूज पता है और हमने निकाले हैं वो डालने हैं आपको, अननोन है वैसे ही रखना है, ठीक है। तो एंगल BDC विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 58 डिग्री। 180 माइनस 90 होता है, 90 माइनस 60 30 होता है, लेकिन ये 60 नहीं है 58 है, मतलब कितना आ जाएगा 32। तो पहला आंसर मिल गया BDC का, जो पूछा गया था वो पहला आंसर मिल गया, ये आ गया, ठीक है। अभी BEC पूछा गया है, देखिए BEC यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं। BEC मतलब ये पूछा गया है BEC, ओके, तो ये एंगल पूछा गया है। और BAC, अच्छा आप देखिए BAC निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, क्यों, क्योंकि BEC इज द सेम सेगमेंट। आप अगर यहाँ पे देखा आपने, ये BEC इज द सेम सेगमेंट, ये वाला जो है वो सेम सेगमेंट है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, ये BEC के वजह से। अगर मैंने लिया आर्क BEC, सो आर्क BEC के वजह से दो एंगल्स बन रहे हैं, BDC एंड BAC, है ना। टू एंगल्स ऑन circumference आर फॉर्म्ड, कौन से वाले, जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किए हैं, यहाँ पे ये एक एंगल और ये एक एंगल, है ना। सो एंगल कौन सा है, BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट लिख दिया। तो ऑलरेडी हम लोगों ने BDC निकाला है, BDC ऑलरेडी पता है हमें, हमने यहाँ से निकाला है BDC, तो BAC भी मिल जाएगा। BAC BDC के जितना है 32 डिग्री मिल गया, देखिए। और आप चेक कीजिए BEC जो होने वाला है, BEC क्या होगा, BEC एंड BDC दे आर इन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, राइट, ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन रहा है,
कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनेगा? अगर मैं दिखा रही हूं ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो BACE या आप BDCE बोलोगे तो भी चलेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल वाला लॉजिक लगा देंगे। ठीक है, तो आप कोई भी लिखिए उसमें से, दोनों भी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो BECA is cyclic quadrilateral, is cyclic quadrilateral. Therefore, angle BEC will be equal to 180 minus angle BAC. So 180 minus 32 degree. So 180 minus 30 होता तो 150, लेकिन ये 32 है तो कितना आ जाएगा? 148 डिग्री। सो एंगल BEC भी मिल गया मुझे। ठीक है, मेरे सारे आंसर्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं। आप जरा देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या? तो एट द वेरी बिगनिंग व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन इज बीन गिवन टू अस, उसको बहुत अच्छे से आप देखिए, एनालाइज कीजिए। एंगल्स इन सेमी सर्कल वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है। एंगल सम प्रॉपर्टी तो ट्रायंगल वाला है, क्योंकि वे ट्रायंगल दिखता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी, अगर दो एंगल्स है तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी आपको यूज करना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? दैट इज ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना, वो वाला प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखिए कैसे इसको सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, ये भी PYQ क्वेश्चन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What has been given in given figure? O is center of the circle. Angle DAE is 70. तो DAE, ठीक है, मतलब ये एंगल DAE, ये एंगल जो है वो 70 डिग्री है। ठीक है, फाइंड BCD, BCD, ओके, एंड BOD एंड OBD। ओके, देखिए अभी आपने अगर चेक किया तो BCDA एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बन गया है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे हम लोग, दैट इज BCDA इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एंड ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल वाला जो प्रॉपर्टी था वो यूज करेंगे, तो ये एक्सटीरियर बन गया और ये इंटीरियर बन गया जो दूर वाला है ना। तो लिखेंगे एंगल DAE, एंगल DAE इज एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर आपको जो पूछा गया एंगल BCD इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल DAE, तो एंगल BCD इज इक्वल टू, ये तो गिवन है ना, DAE तो गिवन है, कितना है? 70 डिग्री। तो ये थियरम के हिसाब से, यहाँ पे हम लोगों ने थियरम जो पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल का, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए ये एक्सटीरियर था और ये उसका दूर वाला इंटीरियर का अपोजिट वाला है ना, अपोजिट है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। ये देखिए ये एक्सटीरियर है और इसके सामने, ये एक्सटीरियर है, इसके सामने दूर वाला जो अपोजिट वाला है वो एंगल BCD है, तो वो भी सेम आ जाएंगे, ये दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, now what is next question? BOD they are asking. See if I'm getting this, so obviously this is the same segment, ये जो है वो सेम सेगमेंट है ना, तो लिखेंगे एंगल इन सेम, ये सेम सेगमेंट है लेकिन O जो है वो सेंटर में आ रहा है, तो एंगल BOD इज 2 टाइम्स ऑफ एंगल BCD। सो 2 टाइम्स मतलब 2 into 70 BOD, ये जो है वो 140 आ जाएगा। ठीक है, इसके डबल आ जाएगा, BOD डबल हो गया। और ये स्टेटमेंट भी लिखेंगे आप, एंगल इन सेंटर इज डबल ऑफ एंगल इन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, और आपको पूछा क्या गया है? OBD पूछा गया है, OBD पूछा गया है, मतलब ये एंगल पूछा गया है, OBD ये एंगल पूछा गया। आपने 9th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो सेंटर में एंगल होता है और ये जो OB एंड OD ये रेडियस होते हैं, है ना, तो आपका जो सेंटर में एंगल होता है और ये जो साइड वाले एंगल होते हैं वो XX होते हैं।
तो हम लोग को एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है। ये कितना दिया है, 140 दिया है, तो लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। That is BOD, triangle BOD is isosceles triangle. Angle, sorry, side OB and OD are equal radius of same circle. So therefore, angle OBD and angle ODB are x degree. So by angle sum property, क्या हो जाएगा, x प्लस एंगल, वो जो सेंटर वाला है BOD will be equal to 180 डिग्री. So 2x प्लस सेंटर वाला कितना है, 140 डिग्री है ना. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 40 डिग्री, x इज इक्वल टू 20 डिग्री. मिल गया. x मतलब ही क्या है, OBD है. सो एंगल OBD इज इक्वल टू 20 डिग्री. ठीक है, आंसर मिल गया आपको. आई होप आपको ये समझ में आ गया है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी व्हाट इज बीन गिवन, दैट इज AD इज द डायमीटर. Okay, so over here AD is the diameter. Look at this, O is the center, right? AD is parallel to BC. AD and BC are parallel to each other. CBD, okay, this angle CBD, C और ये, तो ये एंगल दिया है, कितना है, 32 डिग्री है. ठीक है, फाइंड OBD पूछा गया है. ठीक है, और क्या पूछा गया है, AOB एंड BED पूछा गया है. नाउ व्हाट यू आर एबल टू सी, तो हमें आंसर में लिखना चाहिए AD इज पैरेलल टू BC. ठीक है, तो आप देखिए AD, ये जो है AD is parallel to, ये AD and BC ये पैरेलल है, और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये वाला जो लाइन है वो उसका ट्रांसवर्सल है. ठीक है, एंड BD इज ट्रांसवर्सल. तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है. तो अगर ये 32 है तो ये भी 32 हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है ना. तो लिखेंगे ADB इज इक्वल टू एंगल ये DBC जो गिवन है, या CBD विच इज इक्वल टू, और रीजन पहले लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल. देयरफोर एंगल ADB इज इक्वल टू 32 डिग्री. ठीक है, पूछा क्या है आपको, OBD पूछा गया, ये एंगल पूछा गया है OBD. अब क्या लिखोगे, ये देखिए, ये वाला अगर ट्रायंगल मैं पकड़ रही हूँ, ये वाला ट्रायंगल अगर मैंने पकड़ा, तो आप क्या लिखोगे, OD एंड OD आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सॉरी ऑफ सेम ट्रायंगल. कौन सा है, OBD. पहले सेम सर्कल लिखिए, फिर हाँ सेम सर्कल लिख देते हैं. एंड देयरफॉर OB इज इक्वल टू OD इन ट्रायंगल, कौन सा है, OBD. देयरफॉर एंगल कौन सा, ODB एंड एंगल OBD दे आर इक्वल. क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये लास्ट ईयर आपने पढ़ा था. आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम होता क्या है कि अगर दो साइड्स इक्वल है, मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बन रहा है, तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जो इक्वल साइड्स होते हैं, उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो आपका पहला आंसर आपको मिल गया, OBD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 32 ही आने वाला है. तो पहला ये आंसर जो है पूछा गया है वो मिल गया आपको. ठीक है,
OBD आ गया। अभी AOB पूछा गया आपको, AOB। आप देखिए AB इज द सेम सेगमेंट, आपको चेक करना है AB इज द सेम सेगमेंट। तो ADB अगर आप चेक करोगे एंड AOB, तो O इज इन द सेंटर, तो 32 के डबल हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे AB is same segment and angle AOB is equal to 2 times angle ADB। तो AB ये सेगमेंट के वजह से हमें AOB एंड ADB का रिलेशनशिप मिल गया, दैट इज एंगल इन सेंटर is double of angle in circumference। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू, ये कितना है 32 है, सो 2 इंटू 32 डिग्री विच इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो AOB मिल गया मुझे। ठीक है, लास्ट में पूछा गया है BED। अब देखिए अभी BED, हाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा, आप चेक करोगे BED, तो मैं ये यहाँ पे हाईलाइट ब्लू से पिंक से कर रही हूँ। BCD आप ये सेगमेंट देखिए, BCD से मुझे मिल रहा है BED। ठीक है, BCD सेगमेंट के वजह से मुझे मिल रहा है BED। तो इसका और ये जो एंगल BOD है, इनका रिलेशनशिप आना चाहिए, है ना, इन दोनों का रिलेशनशिप आना चाहिए। तो BOD हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि AOB पता है ना। सो एंगल BOD इज 180 माइनस एंगल AOB, क्योंकि ऑलरेडी AOD एक स्ट्रेट लाइन है डायमीटर होने के वजह से, तो ये दोनों 180 होगा एडिशन, है ना। तो एंगल BOD मिल जाएगा मुझे 180 माइनस 64, 180 माइनस 60 120 होता है, लेकिन ये 64 है तो 116 हो जाएगा। ठीक है, BOD मिल गया मुझे। तो हमें पूछा क्या गया है, थर्ड वाला BED पूछा गया है, BED। सो लिखेंगे BED इज हाफ ऑफ BOD, एंगल BED इज हाफ ऑफ एंगल BOD, सो हाफ ऑफ 116, तो आ जाएगा 5 और 8 58। सो एंगल BED मिल गया मुझे, है ना, सारे एंगल्स मुझे मिल गए। ये सेम रीजन, दिस एंगल इज इन द सेंटर इज डबल टू द एंगल ऑफ एंगल इन द सर्कमफरेंस। बस हो गया, ये भी मिल गया आपको। देखिए क्वेश्चन 4 भी आ गया, है ना। तो आपको ऑब्जर्व करना है आपके सेम सेगमेंट कौन से है, या फिर वो जो रिलेशनशिप है कि सेंटर वाला जो एंगल होता है और सर्कमफरेंस, एनीवेयर इन द सर्कमफरेंस वाला जो एंगल अगर सेम सेगमेंट में लाई हो रहे हैं तो उनका ट्वाइस वाला रिलेशनशिप होता है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली तो वही दो होते हैं, एक तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट होता है और दूसरा द एंगल इन द सेंटर इज ट्वाइस और डबल ऑफ द एंगल इन द सर्कमफरेंस, एक वो वाला होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। बाकी के जो दो हैं वो आसान है, साइक्लिक प्रॉपर्टी भी आसान है समझने के लिए कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 180 होते हैं, अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 होता है। और एक बचा है जो है सेमी सर्कल वाला या फिर डायमीटर वाला, कि डायमीटर अगर होगा तो वो 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो ये चार आपको कॉन्सेप्ट्स है, थियरम्स है, बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ही है उन्होंने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, है ना। तो कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, PQRS। और ये समझ में आ रहा है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, क्यों, सारे जो वर्टेक्स है वो सर्कमफरेंस के ऊपर लाई हो रहे इसीलिए। ठीक है, गिवन में क्या दिया है, QPS 73 डिग्री, PQS 55 डिग्री, PQS 55 डिग्री, PSR ये पूरा जो है वो 82 डिग्री है। पूछा क्या गया है, QRS। अच्छा देखिए, तो लिखेंगे हम लोग आंसर में, दैट इज
PQRS इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये गिवन है। देयरफॉर दो एंगल, कौन सा, ये एंगल P और ये एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल P कितना है 73 डिग्री, एंगल R पता नहीं है, जो हम लोग निकाल सकते हैं 180 माइनस 73, सो वो कितना होगा 107, एंगल R इज 107, एंगल R मतलब ही एंगल QRS है 107 डिग्री, ये पहला आंसर मिल गया हमें, ठीक है। RQS पूछा गया अभी, चलिए दूसरा निकालते हैं। RQS, RQS ये पूछा गया है, ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है, तो ये एंगल पूछा गया है। अच्छा देखिए ये पूरा 82 है ना, तो लिखेंगे एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, तो ये पूरा निकाल लेते हैं PQR, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, एंगल S तो 82 डिग्री है, एंगल Q मतलब यहाँ पे मैं लिखूंगी PQR, एंगल PQR 180, सो एंगल PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 82 डिग्री, मतलब कितना आएगा 98, ठीक है, 98 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये मिल गया मुझे 98 डिग्री। तो पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया RQS, सो एंगल RQS विल बी इक्वल टू ये PQR माइनस SQP या PQS, तो PQR आपने अभी निकाला 98 माइनस 55, तो कितना आ जाएगा 43, तो एंगल RQS भी मिल गया हमें 43, ठीक है। फिर PRQ पूछा गया है, चलिए PRQ देखते हैं, PRQ ये पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया, तो हमें क्या चाहिए रहेगा, अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए तो सेम सेगमेंट कौन सा है, PQS सेम सेगमेंट, इसके लिए हमारे पास ये दो एंगल्स है, ये एक 73 वाला और ये एक 55 वाला, तो ये एंगल निकाल सकते हैं, तो एंगल इन सेम सेगमेंट हो जाएगा, है ना। तो पहले निकालेंगे इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS बाय एंगल सम, ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्या एंगल्स है, ये एंगल P, एंगल Q और एंगल S, पूरा नाम लिखेंगे SPQ प्लस PQS प्लस PSQ विल बी इक्वल टू 180, तो एंगल SPQ कितना है, SPQ दिया है यहाँ पे, ये दोनों P और Q बीच में कौन सा है, P और Q है, QPS बोलिए या SPQ बोलिए, ये 73 है, देन कितना है 55 है, तो PSQ मिल जाएगा, तो एंगल PSQ विल बी इक्वल टू 180 माइनस 73 माइनस 55, 180 minus 73 is 107, 107 minus 55 which is 52, तो एंगल PSQ मिल गया, PSQ and PRQ is equal to PSQ is equal to 53 angles in same segment, ये मिल जाएगा हमें, देखिए आ गया, लास्ट वाला जो है वो भी मिल गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये, है ना, आपको बस यूज करना है, जो थियरम्स आपने जो पढ़े हैं वो आपको अप्लाई करने, यूज करने यहाँ पे, तो आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। Okay, so in this next question, what they have given is BCDE is pentagon inscribed in a circle such that AC is a diameter, side BC is parallel to AE. So AE and BC are parallel to each other. So this two sides are parallel to each other. Okay. So when these two sides are parallel to each other, we can make either use of what, alternate angles, right? So yeah, we are able to see also that these two lines are parallel. These two lines are parallel, which I have highlighted over here. If these two lines are parallel and this AC will act as a transversal, so basically this angle
correct, this angle and this angle are going to be alternate angles and they are going to be equal. We are able to understand that, right? So in answer we can write down that BC is parallel to AE and AC is transversal. AC is transversal. Okay, so therefore angle AEC and ACB are equal. Okay, angle ACB is equal to angle CAE. CAE, they both are equal. Okay, what are they asking is ACB they are asking. Okay, first we'll have to find out this ACB. So we can use this triangle. हम लोग एक triangle, in triangle कौन सा है ACB या ABC भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ABC लिख लीजिए. By angle sum property say 50 degree plus this is already 90 degree, right? See, if AC is a diameter, in a diagram itself they have given, because AC is a diameter, so this is going to be 90 degree. Okay, and what do we need is ACB, angle ACB, which is equal to 180 degree. So angle ACB will be equal to 180 degree minus 50 degree minus 90 degree. So obviously 40 degrees. Okay, we have got 40 degrees. This is also 40 degree. This is also 40 degree. Okay, what they need is EDC. EDC. Okay, if I'm considering AEDC, AEDC, ये हो गया. AEDC is cyclic quadrilateral. ठीक है, AEDC is cyclic quadrilateral. कौन सा वाला cyclic quadrilateral मिल रहा है हमें? So if I'm highlighting this, okay, and this is a cyclic quadrilateral. So this angle and this angle are going to be what? They are going to be supplementary. So angle CAE. See here I have written, no? First we'll have to write down this. Okay, angle CAE is equal to 40 degree. That is from 1. This I have written. And AEDC is a cyclic quadrilateral, so I can write this later on, as in okay, I'm taking this, I'm shifting it, and what I can write down this angle and this angle. So angle CAE plus angle EDC जो पूछा गया है, EDC is equal to 180 degree being cyclic property. ठीक है, so angle EDC will be equal to 180 degree minus angle CAE. 180 minus 40, which is equal to 140 degree. Angle EDC. This also I have got EDC also. Now BEC, they are asking for BEC. Okay, BEC. BEC they are asking. So see, if I'm checking this, BC is the same segment. So BAC and BEC, they are angles in same segment. BC is common arc, yeah, common segment. And two angles on circumference. Two angles on circumference are angle BAC and BEC. BAC and BEC. They are angles in same segment. Okay, so what they need is BEC. So BEC, BAC कितना है ऑलरेडी पता है हमें, 50 है, ये यहाँ पे पता है हमें, है ना, 50 डिग्री, तो मिल गया ये भी. ठीक है, देखिए अभी आसान लगने लगा है ना. ये हम लोग को बस देखना है कैलकुलेशन वाइज कि कौन से एंगल्स है, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लग रहा है क्या, या साइक्लिक प्रॉपर्टी लग रहा है ना, या फिर एंगल्स इन सेम सेगमेंट लग रहा है, क्या लग रहा है एग्जैक्टली वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है और रीजंस भी लिख देने हैं आपको. ठीक है,
आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, मैं आपको हिंट देती हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट्स में आंसर लिख के भेजना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, बी सी डी इज 130 डिग्री, तो ऑलरेडी गिवन है, डी ए बी पूछा गया है, डी ए बी पूछा गया है, ये एंगल पूछा गया आपको, डी ए बी। आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, और आप क्या लिखोगे, ये एंगल ए और ये 130, ये क्या होंगे, दैट इज एंगल डी ए बी प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि साइक्लिक प्रॉपर्टी है, और आप अभी इसका आंसर निकालोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ये भी आपको लिखना चाहिए, ठीक है। और सेकंड क्या पूछा है, डीबीए पूछा गया आपको, सेकंड क्या पूछा गया है, डीबीए, सो डीबीए, डीबीए पूछा गया, तो यहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है कि ए बी इज द डायमीटर, और जो एंगल बन रहा है वो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। आपको लिखना है ए बी इज डायमीटर, तो उसके वजह से एंगल क्या बन रहा है, एंगल ए डी बी बन रहा है, वो 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर आपको कौन सा ट्रायंगल पकड़ना है, ये वाला ट्रायंगल पकड़ना है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप करोगे, एंगल सम से आपको ये मिल गया है, ये 90 मिला है, तो ये आप निकाल सकते हो, तो एंगल कौन सा है, ये पूछा गया डी बी ए, तो 180 माइनस ये एंगल ए जो है, एंगल ए जो आपने निकाला है वो डी ए बी करोगे, और ये जो 90 डिग्री मिला है आपको, ये वाला एंगल, ठीक है, और आपको आंसर डीबीए का मिल जाएगा। देखिए कितना आसान ये क्वेश्चन था, है ना। आप ये खुद सॉल्व करोगे, मैंने आपको हिंट भी दिया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है, आप सॉल्व करोगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए let's move to next question. Abhi okay, see now in this question number 8, what has been given, A is at the center of the circle and ABCD is a parallelogram, CD is a straight line, prove that BCD is equal to 2 times of ABE. ओके, तो पैरेललोग्राम जब भी होता है, तो पैरेललोग्राम के लिए आपको याद रखना है क्या प्रॉपर्टीज रहेंगे, 9th स्टैंडर्ड में आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, तो AB इज इक्वल टू DC एंड AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, तो AB एंड DC आर पैरेलल, आल्सो यू कैन से दैट इज AB is parallel to whole EC, instead of DC you can write down whole EC, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, AB एंड EC is parallel, ताकि आपको ना ऑल्टरनेट एंगल्स यूज कर सकते हो आप लोग, इसीलिए तो ऑल्टरनेट एंगल का यहाँ पे यूजेस होना चाहिए। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल भी होते हैं, तो आप अपोजिट एंगल्स जो है A एंड C आर अपोजिट एंगल्स, B एंड D आर अपोजिट एंगल्स, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, हाँ ये पैरेललोग्राम के हैं, एंड एंगल ये वाला ADC इज इक्वल टू एंगल ABC, ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आपने लिख दिया, आप ये यूज करोगे आगे जाके, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने जो बोला था ये ऑल्टरनेट आ जाएगा, है ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये वाला जो लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये लाइन और ये लाइन, तो Z बना रहा है, देखिए Z बना रहा है ना, Z वाले फॉर्मेशन में आ रहा है, तो ये दो एंगल्स इक्वल है, तो एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल BEC, ऑल्टरनेट एंगल्स, आप ऑल्टरनेट एंगल्स लिखिए, ठीक है। और आपको पूछा क्या गया है, BCD पूछा गया है, ये एंगल, और ABE पूछा गया है, ABE ये एंगल पूछा गया है, ठीक है। आप अगर नोटिस करोगे तो आपके पास BD इज द सेगमेंट, और इस सेगमेंट के वजह से आपको दो एंगल मिल रहे हैं, एक सेंटर में मिल रहा है और एक एंगल मिल रहा है आपको सर्कमफरेंस पे, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का शेडिंग देखिए आप, ब्लू कलर में जो लिखा है वो देखिए, मैंने जो बनाया है यहाँ पे मार्किंग में, तो वो आपको BD इज
सेम आर्क एंड इसके वजह से जो एंगल बन रहा है सेंटर में वो कौन है, BAD इज 2 टाइम्स, ये सेंटर में होता है वो 2 टाइम्स होता है, इज 2 टाइम्स ऑफ BED, 2 टाइम्स BED। ठीक है, BED के जगह पे ना आप BEC लिखोगे, सो एंगल BAD इज 2 टाइम्स एंगल BED के जगह पे आप C लिखोगे, बस एक्सटेंशन वाला जो है वो लिख रहे हो, D के जगह पे एक्सटेंशन C लिख रहे हो आप। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी हम लोग ने BEC यूज किया है। ठीक है, तो हम लोग ने ये लिख दिया। इसका आंसर क्या है, रीजन में जो लिखेंगे वो एंगल इन सेंटर इज ट्वाइस और डबल ऑफ एंगल इन सर्कमफरेंस, है ना। ये आपने रीजन भी लिख दिया। अभी BAD, जो BAD है और BCD है वो दोनों इक्वल है एक दूसरे के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स है। ये जो लिखा है ना मैंने, ये वही वो एंगल्स है। तो एंगल BAD के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, BCD, तो BCD लिख दिया। ठीक है, और पूछा क्या गया है, ABE के लिए पूछा गया है। आप देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है BEC इज इक्वल टू ABE, हो गया। तो बस आपने ऊपर वाला जो है उसका यूज कर लिया, हेंस प्रूफ। देखिए बहुत आसान था, आपको ना एंगल्स इन द सेंटर एंड एंगल एट द सर्कमफरेंस का जो प्रॉपर्टी है वो यूज करना है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज करना है, और पैरेलल लाइंस का जो ऑल्टरनेट एंगल्स है वो यूज कर देना है, और फिर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पहली बार देखने से आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, इसीलिए क्वेश्चन में भी पैरेललोग्राम दिया है। सो 9th स्टैंडर्ड का जो प्रॉपर्टीज है, क्वाड्रिलैटरल्स जो चैप्टर था उसमें प्रॉपर्टीज जो थे वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा बेटर फील हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चंस हमें डुएबल लग रहे हैं, है ना। बच्चों को ना ये याद ही नहीं आता, अच्छा पैरेललोग्राम वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, ये याद ही नहीं आता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जो दिया है वो क्या होता है, मैं एक बार वापस से बताती हूँ। एंगल्स और साइड्स के बारे में वो प्रॉपर्टी है। पैरेललोग्राम मतलब क्या, पैरेलल लाइंस, है ना। तो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल लाइंस होते हैं, इसीलिए हम लोग ने क्या लिखा, ये देखिए ये अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल है और इक्वल है। हाँ, रेक्टेंगल के जैसा ही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आल्सो एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपको याद रखना है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। तो हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आसान था, छोटा सा ही है, प्रूफ दैट है। प्रूफ दैट कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द टाइम फाइंड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रूफ दैट के लिए भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी प्रूफ दैट का ही क्वेश्चन है। Okay, now let us go to next question, which is also proof that question. Okay, now whenever this proof that questions are coming into consideration, आपको एक चीज बहुत याद रखना है सटीक तरीके से कि वो ट्रायंगल्स के लिए देंगे तो कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चन आता है, जैसे सिमिलैरिटी एंड सर्कल्स का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आता है, या फिर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सिमिलैरिटी से आप डिराइव कर सकते हो, या फिर आप 9th स्टैंडर्ड में जो मैंने बताया था आपको एक प्रॉपर्टी था कॉर्ड्स का, परपेंडिकुलर, इफ यू आर ड्राइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to the chord, then it will bisect the chord into 2 equal parts, है ना। तो ऐसे वाले प्रॉपर्टीज जो है वो आपको थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो प्रूफ दैट होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको नोटिस नहीं किया है तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, फाइंड वाले यूजुअली ना बहुत आसान होते हैं, क्योंकि डायग्राम में समझ में आ जाता है, हमें दिए होते हैं, कुछ वैल्यूज दिए होते हैं, है ना। सो यूजुअली फाइंड वाले क्वेश्चंस बेटर लेवल पे होते हैं, समझने के लिए भी आसान होते हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, और सॉल्व एग्जांपल्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी भी इसमें आएगा, इसीलिए ये मैंने ये चूज किया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, अ डायमीटर AB एंड कॉर्ड AD आर ड्रॉन। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, मतलब क्या, पहले बड़ा वाला सर्कल है और उसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, तो पहले जो बड़ा वाला सर्कल था उसका सेंटर O है, डायमीटर इज AB, AB ये डायमीटर है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर AB है।
कॉर्ड एडी, मतलब कॉर्ड भी बनाया गया है, कॉर्ड एडी भी बनाया गया है, ठीक है। अनदर सर्कल इज ड्रॉन विथ एओ एज द डायमीटर, एक दूसरा सर्कल बनाया, ये देखिए ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, वो आपका दूसरा सर्कल बनाया गया है यहाँ पे, ये जो बनाया गया है, ये छोटा वाला जो सर्कल बनाया गया है वो दूसरा वाला सर्कल बनाया गया है, और इसमें एओ जो है वो भी डायमीटर है, टू कट एडी एट सी, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो सी है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहली बात तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, मतलब आपको ट्रायंगल बनाने हैं अभी, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल के लिए ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ए डी बी, ये ट्रायंगल बन जाएगा। और छोटा वाला जो सर्कल है ना, उसके लिए आपको ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल ऐसे बन जाएंगे आपको, ठीक है। और क्या दिया है आपको, दिया गया है कि ए बी इज अ डायमीटर, एओ इज ऑल्सो डायमीटर फॉर द स्मॉल सर्कल। तो हमें पता है अगर ए बी डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो आंसर में लिखेंगे हम लोग कि ए बी is a diameter, therefore angle ADB is equal to 90 डिग्री, ठीक है। एंड वैसे ही लिखेंगे AO is a diameter, AO is a diameter, therefore angle ACO, angle ACO is equal to 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री 90 डिग्री हम लोग ने बना दिए यहाँ पे। अच्छा आप देखिए, नोटिस कीजिए, O इज द सेंटर, बड़े वाले सर्कल के लिए O इज द सेंटर एंड यू आर ड्रॉइंग 90 डिग्री एज इन परपेंडिकुलर, ठीक है। सो फॉर बिग सर्कल O इज सेंटर एंड OC is perpendicular to AD, OC is perpendicular to AD, ठीक है। OC and AD are perpendicular to each other, तो C भी क्या बन जाएगा, therefore C is midpoint of AD, है ना। तो C क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी O तो मिड पॉइंट है ही AB के लिए, अभी C भी बन गया मिड पॉइंट AC के लिए, therefore हम लोग क्या लिखेंगे, AC is equal to CD, ठीक है। therefore अगर बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया और छोटा वाला, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में ये ना रेशियोज के फॉर्म में हम लोग को दिखाना है, हाँ। तो आ जाएगा कैसे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACO, ठीक है। तो रेशियो में कैसे आ जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए 2 टाइम्स और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए 1 टाइम, है ना। सो व्हाट डू वी हैव, दैट इज वी कैन राइट इट डाउन एज AB upon AC, AB upon AO, AB upon AO will be equal to AD upon AC, AD upon AC, which is going to be 2:1. AB upon AO will be equal to AD upon AC, which is equal to 2:1, and angle C and angle D, they both are 90 degree. So therefore triangle ADB is similar to triangle AOC, AOC, ADB is similar to ACO, not AOC, ACO, ADB is similar to ACO, D and C are 90 degree, right? So by SAS टेस्ट, तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग ने SAS टेस्ट से प्रूव कर लिया, so what we can write down, that is this side CO and DB side also we can write down that they are in same ratio 2:1. So what are those sides, CO and DB, okay. So this and this, so DB is equal to, no not equal to, ratio में लिखना है, DB upon CO will be equal to 2:1. पूछा क्या गया है, BD is 2 times, so just multiply, therefore DB means BD is equal to 2 times of OC,
You just multiply, you will get your answer. C, 2 times of OC, proved. हो गया प्रूफ। तो ये क्वेश्चन आपको जो है वो सिमिलैरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे आपको एक नोटिस करना है, आपने ये जो प्रॉपर्टी लगाया है ना, ए बी इज अ डायमीटर एंड बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये कौन सा है, एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल्स। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करेंगे तभी आप एसएएस पे पहुंच जाओगे, नहीं तो एसएएस पे पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना है, इसीलिए ये सर्कल्स और सिमिलैरिटी का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। तो आपको सिमिलैरिटी में जो आपने पढ़ा था वो सर्कल्स की हेल्प लेके आपने सॉल्व किया है और आपको आंसर मिला है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि जहां पे आपको 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिलकर क्वेश्चन यहाँ पे टैकल करना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी टाइप का क्वेश्चन है ये। चलिए, we'll go to this next question which has been given some point where they have given I. See, it is not O, है ना। यूजुअली हम लोग जो O बोलते हैं वो सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, लेकिन ये क्या है, I। तो I क्या लिखा है उन्होंने, I is in center of triangle ABC। तो ये इन सेंटर होता क्या है, इन सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर। इन सेंटर मतलब क्या, ये जो आई जो है, आई जो होता है ये आपने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो आई इज इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। आई मतलब इन सेंटर है, तो इन सेंटर मतलब क्या है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो वो सेंटर नहीं है, वो इन सेंटर है, ठीक है, ये आपको नोटिस करना है। तो ये जो ट्राइंगल भी है वो ट्राइंगल क्या है, इट इज लाइंग ऑन दैट सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमने एकदम स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, है ना, तो ये वैसा वाला टाइप है कि जहां पे आपको पॉलीगॉन सर्कल के अंदर है और उसके सारे वर्टेक्स जो है वो सर्कमफरेंस पे लाई हो रहे हैं। तो ये इन सेंटर का एक मतलब क्वेश्चन जो है वो आपको आना जरूरी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे और आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप प्लीज इसको नोटिस कीजिए, ये इन सेंटर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, बी ए सी इज 50 डिग्री दिया है उन्होंने, बी ए सी ये 50 डिग्री है करके दिया है, ठीक है। ए बी सी इज 70, ए बी सी इज 70 डिग्री, ठीक है। पूछा क्या गया है, बीसीडी पूछा गया है, ओके। तो एक काम करेंगे, पहले इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो बी ए सी कितना दिया है 50 डिग्री, ए बी सी कितना दिया है 70 डिग्री, बी सी ए कितना दिया है, दिया ही नहीं है, ठीक है। सो एंगल बी सी ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो बी सी ए इज 60 डिग्री, ठीक है। हमें ओके, अभी आपको पूछा क्या गया है, चलिए देखते हैं। पूछा गया आपको बीसीडी, ठीक है। सो बीसीडी पूछा गया है, तो ये एंगल पूछा गया आपको, ठीक है। सो बीडी अगर मैंने ये सेगमेंट ले लिया, बीडी इज द सेगमेंट, तो इसका एंगल कहाँ पे आ रहा है, ये एंगल बन रहा है बी ए आई, ये एंगल बन रहा है बी ए आई। तो बी ए आई क्या होगा, क्योंकि आप आगे जाके ज्वाइन करोगे तो आपको बी ए डी मिल जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले बी ए आई निकालना चाहिए। एंगल बी ए आई इज हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है इसीलिए, ठीक है। ए आई इज एंगल बाइसेक्टर, ये जो है वो एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से,
So therefore angle BAI is half of 50 degree which is equal to 25 degree. ठीक है, तो BCD भी कितना आ जाएगा, BCD is equal to BAI, angles in same segment. So therefore angle BCD is equal to 25 डिग्री. मिल गया आपको पहला वाला आंसर. फिर ICD पूछा गया है, ICD ये वाला एंगल पूछा गया है. चलिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं. हाँ, पूछा क्या गया, ICD. ICD देखिए, ICD ये एंगल पूछा गया आपको. ठीक है, वापस से लिखेंगे कि CI इज एंगल बाइसेक्टर. तो ऑलरेडी हमें ये इतना एंगल मिल गया है जो 25 डिग्री है, और CI या IC इज द एंगल बाइसेक्टर. तो लिखेंगे IC इज एंगल बाइसेक्टर of angle C. So therefore ICB, angle ICB is half of angle ACB which is half of 30 degree, मतलब 60 degree which is equal to 30 degree. So angle ICB मिल गया आपको 30 degree. ये जो एंगल है वो मिल गया 30 डिग्री. सो 30 प्लस 25 कीजिए, आपको जो पूछा गया है वो. ICD इज इक्वल टू ICB प्लस एंगल BCD. तो क्या आ जाएगा ये 30 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 55. एंगल ICD मिल गया आपको. ठीक है, और लास्ट में पूछा गया है BIC. BIC आप कैसे निकालोगे, देखिए यहाँ पे BIC जो पूछा गया है, I will use this color, BIC ये पूछा गया है, BIC. तो ये एंगल पूछा गया है. ठीक है, BI इज एंगल बाइसेक्टर एंड इवन IC इज एंगल बाइसेक्टर. तो आप ये 70 का हाफ कर दीजिए, ये 35 हो जाएगा. यहाँ पे ये ऑलरेडी आपने निकाला है 30 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसको निकाल सकते हो, है ना. तो अगर मुझे निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, पहले लिखोगे यहाँ पे थर्ड के लिए, दैट इज BI इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ angle ABC. Therefore angle IBC is half of angle BABC which is half of 70 which is equal to 35. तो ये 35 है, ये 30 है, और एंगल सम प्रॉपर्टी करिए. सो इन ट्रायंगल BIC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको आंसर मिल जाएगा. ये आपके लिए होमवर्क होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए एंगल बाइसेक्टर के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो आई से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ओ से नहीं कर रहे हैं. आपने इतने सारे क्वेश्चंस देखे, जब भी सेंटर था तो वो ओ से रिप्रेजेंटेशन, और उन्होंने लिखा था कि वो सेंटर है, लेकिन जब आई है तो वहां पे मेंशन कर रहे हैं कि वो इन सेंटर है. तो इन सेंटर एंड सेंटर का डिफरेंस है. इन सेंटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं उसको आई से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है. ठीक है, आप नॉर्मली ओ वाले कॉन्सेप्ट्स अगर लगाएंगे सेंटर वाले कॉन्सेप्ट तो गलत आएगा आंसर. आपको ये नोटिस करना है बहुत ध्यान से. कभी कभी असर्शन क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, असर्शन रीजनिंग में वैसे भी पूछा जाता है, क्योंकि इन सेंटर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन में भी आता है. इसीलिए आपको याद रखना है इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉल्ड एज इन सेंटर. ठीक है, चलिए ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी व्हाट इज बीन गिवन. द फिगर शोज सर्कल विद सेंटर O. PQ, QR and RS, they all are equal. PTS is given as 75 degree. Calculate, O obviously is the center of the circle. Okay, so POS they are asking, QOR they are asking, QOR and PQR they are asking. Okay, now if I talk about this PQ, QR, RS,
Okay, they are all equal. Fine, if they are equal means from over here if I join this, so PQRS is the segment. See, PQRS is the segment. ठीक है, and POS is the angle at the center. ठीक है, so PQRS is an arc and angle POS is at center of that arc and angle PTS is at circumference. Is at circumference. So therefore, angle POS is 2 times angle PTS. So POS will be equal to 2 times of 75, which is equal to 150 degree. So POS I have got 150 degree. ठीक है, बट व्हाट एल्स दे हैव गिवन, तो आपको दिया है ये जो है PQ, QR एंड RS, ये सब क्या है, इक्वल है. सो PQ, QR, RS या SR are equal, therefore their angles at the center are also equal. The angles at center मतलब POQ is equal to QOR is equal to angle ROS. They are also equal. This concept we have learned in 9th standard also. ये same concept दिया था. ठीक है, तो ये तीनों एंगल जो है सेंटर पे वो भी इक्वल हो जाएंगे. लेकिन जो POS है, POS is made up of what? These three angles POQ, QOR and ROS. So you write it down. POS, sorry, POQ plus QOR प्लस ROS, ये तीनों इक्वल होने के वजह से हम लोग इसको 3 टाइम्स ऑफ एंगल, व्हाट इज रिक्वायर्ड, हाँ POS I have got, QOR is required, no, so we'll write down 3 times of QOR. So what we can write down here, 150 is equal to 3 times of angle QOR. So QOR मिल जाएगा हमें, angle QOR is equal to 150 upon 3, which is 50 degree. So second point also we are able to get the answer, second sub part. PQR पूछा गया है, PQR is 2 times, no, okay, PQR has been asked, this angle is been asked. Okay, so how you will find out this angle? First you will have to find out POR. Okay, even if you are not finding that, let's find what, let us find, we'll find this angle separately, PQO and RQO. So how to find that? In triangle, we'll write down in triangle POQ. Okay, so in triangle POQ, PO and OQ are equal. PO is equal to OQ, radius of same circle. ठीक है, once you are writing this, therefore angles which are formed, OPQ and OQP are equal. OPQ and OQP, they are equal. Isosceles triangle theorem. ठीक है, this is isosceles triangle theorem. So therefore angle POS plus angle OPQ plus angle OQP is equal to 180 degree. POS we are having, POS is, no, not POS, POQ. POQ is 50 degree and 2 times of angle OQP, which is equal to 180. So 2 times angle OQP is equal to 180 minus 50, which is 130. So angle OQP is equal to 65. So ये 65 मिल गया. Same, because this is 50, this is also 50. So this is also going to be 65 only. Right? Because ये भी 50 है and जो center वाला है वो 50 है. So basically तीनों जो triangles है ना वो equivalent ही है. तो हम लोग ना without solving ही लिखेंगे तो भी चलेगा. OQR
is equal to 65. So PQR will be equal to what? That is 65 plus 65 is going to be 130. So angle PQR will be is equal to 65 plus 65, 130 degree. We got our answer. Or else other way around also, if we have to do it, we can do it in this way. Okay, what do we have as angle POR? See, alternative. I am writing here alternative. This is for third one. Third one का alternative. Angle POR is equal to 100 degree. 50 plus 50, 100. ठीक है. So reflex of angle POR. Reflex angle POR will be equal to 360 minus 100, which is 260 degree. This is reflex angle. Reflex means what? 360 minus you take, you call it as reflex angle. So angle PQR is half of reflex angle POR. So half of 260. See, now also I am getting 130. So I have got the alternative also. This is the reflex angle. If I have to show you reflex angle, this is the reflex angle. Okay, you can do it by this way also. So this is reflex angle. Reflex is just 360 minus of the angle, you call it as reflex angle. तो ये point भी आप याद रख सकते हैं. Reflex angle जो होता है वो भी आप याद रख के solve कर सकते हो, क्योंकि ये जो angle बना रहा है यहाँ पे, ये इसका आधा हो जाएगा, है ना. ये जो angle यहाँ पे बना रहा है, तो ये जो reflex angle POR है उसका वो आधा है. ठीक है, तो अब ये situation जो है ये भी ऐसे कर सकते हो. आपको ये अवॉइड करना है पूरा लेंदी, तो आप ये वाला कर सकते हो जो रिफ्लेक्स एंगल पॉइंट ऑफ व्यू मैंने जो दिया है. ठीक है, ये थर्ड वाला पॉइंट है यहाँ पे. आप इसको भी थोड़ा देख सकते हो और समझ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे and we are able to understand all the concepts what are been given in our textbook, okay, which are related to the 17th chapter, which is circles. I have not included tangents in this. tangents के लिए अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे. ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ सर्कल्स वाले जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़े हैं 17th चैप्टर. तो देखिए लिखा क्या है इन फिगर गिवन. O is the center of the circle. Length of arc AB is twice the length of arc BC. So length of arc AB is twice the length of arc BC. ये दिया है. ठीक है, AOB दिया है, AOB दिया है, पूछा है CAB. ठीक है, तो आपका ये जो एंगल है AOB, ठीक है, AOB कितना दिया है 108 दिया है. एक जो लिखा है ना यहाँ पे आपको ये यूज करना है. ठीक है, गिवन क्या दिया है, लेंथ ऑफ आर्क AB is 2 times लेंथ ऑफ आर्क BC. आर्क के बारे में दिया है, ये वाला आर्क जो होता है उसके बारे में दिया है, ये वाला आर्क जो होता है उसके बारे में दिया है. अगर लेंथ ऑफ आर्क बोला गया है ना, मतलब हम लोग बोलेंगे कॉर्ड्स भी. हाँ, और कॉर्ड्स बोल दिया तो उसके एंगल्स भी, या डायरेक्टली भी आप एंगल्स बोलोगे तो भी चलेगा. सो एंगल AOB है ना, एंगल एट द सेंटर, सबटेंडेड एट द सेंटर AOB इज 2 times BOC. ठीक है, 2 times BOC. तो AOB आपको दिया है उन्होंने 108. सो 2 times ऑफ BOC. एंगल BOC इज 108 का हाफ, विच इज 54. ओके, फाइंड CAB पूछा क्या गया है, CAB पूछा गया है, CAB ये वाला एंगल पूछा गया. आप चेक कीजिए, CB इज द सेगमेंट, हाँ लिखेंगे हम लोग, या CB इज एन आर्क. सो एंगल उसका सेंटर पे क्या है, दैट इज COB. एंगल COB इज एट सेंटर एंड एंगल CAB
is that circumference. Therefore हमें रिलेशनशिप पता है, COB is 2 times of angle CAB. ठीक है, तो COB कितना है? COB हमने अभी निकाला है, COB मतलब ही BOC है जो 54 है. So twice of angle CAB. So angle CAB is 54/2 which is 27 degree. आपको फर्स्ट जो सब पार्ट है उसका मिल गया. ADB पूछा गया है. ओके, ADB ये है, ADB ये एंगल पूछा गया आपको. ठीक है, आपका ये जो ADB है, आप रिफ्लेक्स एंगल अगर देखोगे या ये वाला जो है आप इसको देखो, है ना, तो आपको क्या मिलना चाहिए? आपको निकालना चाहिए रिफ्लेक्स एंगल AOB. कितना आ जाएगा? 360 माइनस ऑफ एंगल AOB. सो 360 माइनस ऑफ 108. आप 360 माइनस 108 कीजिए, कितना आ जाएगा? ये 52 और ये 2, सो 252. एंगल पूछा क्या गया है? ADB. एंगल ADB is half of reflex angle AOB. So half of 252. So half of 252 कितना आता है? 126, है ना, तो 126 आपका आंसर हो गया, विच इज इक्वल टू 126 डिग्री. मिल गया आपको, ये आपका सेकेंड पार्ट है वो मिल गया. ठीक है, ये ADB है. तो रिफ्लेक्स वाला जो है ये बहुत आसान है. आपको क्या देखना है? ADB यहाँ पे है ना, ये ADB आपको यहाँ पे है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल. क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला जो है ना, ये बड़ा वाला जो है इसका वो रिलेशनशिप आएगा. आप इसको देखिए, ऐसे चेक कीजिए, ये मेजर आर्क वाला जो है ना वो पोर्शन आ रहा है, इसीलिए आपने क्या किया? रिफ्लेक्स एंगल AOB निकाला, उसका हाफ करेंगे तो आपको ADB मिल जाएगा. ठीक है, तो ये ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस है आप सॉल्व कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस, और प्रैक्टिस करने के बाद में आपको जरूर ये जो चैप्टर है वो आने वाला है. ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट जो है, जो एसोसिएटेड ही है, टेंजेंट्स, जो हम लोग के टेक्स्ट बुक में 18th चैप्टर बोला जाता है, तो वो भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.